there is a demand for all India judicial services, you know. And you know why all India judicial services is not being created or it's not coming. जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होगा तो क्या होगा, फिर प्रमोशन उसी हिसाब से उसी बेसिस पे होगा। एग्जैक्टली अभी क्या होता है, स्टेट क्रिएट करता है और वो सारे जजेस जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही सर जाते हैं, उसका अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट सारा वहीं तक हो जाता है। राइट, आई हैव 3 or 4 फ्रेंड्स हु आर जजेस। राइट, एक तो 30 हजारी में है, एक मथुरा में है, एक मऊ में है। राइट, कहाँ पोस्ट है और मैं बता रहा हूँ कि क्यों वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज में, एज ए डिस्ट्रिक्ट जज वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे वो वहीं से रिटायर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ वो हाई कोर्ट तक नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? ड्यू टू द कॉलेजियम सिस्टम। कौन लोग आ पाएंगे? जो उन जजेज का जो कॉलेजियम सिस्टम में है, उनके भाई भतीजे बंधु, राइट, वो लोग होंगे तो आ पाएंगे। एंड इफ यू लुक एट द जुडिशरी, you know, India's rank in world corrupt, you know, world's corrupt nation. No, कितना है? आगे है या पीछे है? हम ऑनेस्ट है या करप्ट है पूरी दुनिया में? अच्छा, तो करप्ट है, इतना अंडरस्टैंडिंग तो है कि we this country are corrupt, highly corrupt. अच्छा, and that is the highest rank. मतलब we have good rank. मतलब हाँ, top rank. We are top rankers. What are the major institutions which are more corrupt in India? There are 3 basic institutions which are more corrupt. First is subordinate judiciary. Second is police, and third is politics. These 3 institutions are highly corrupt as reported by that report. Now if you look at corruption, it is high. We will talk about the crisis of judiciary. If you look at nepotism, it is high. If you look at, you know, nepotism, तो वही nepotism हो गया सारा, right? And if you talk about nepotism, pending cases बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बातें चल रही है, अभी पढ़ाऊंगा, right? And और भी बहुत सारे क्राइसिस है, right? Judiciary, if you look at representation for SC, ST, OBC and women, right? It has not diversified. कौन कब्जा करके बैठा है? Mostly the unreserved, you are, right? और उसमें भी कौन? ब्राह्मण्स, right? And अभी जो रमना है, like last year he, you know, he said last year, yeah, that, you know, there should be more recruitment of women in Indian judiciary even at the high level, so that, you know, judiciary can be more democratic. But it is applicable to all, everywhere, all institutions. Look at parliament, look at the state assembly. The women representation are very low. और वो क्वेश्चन आया था 2021 का मेंस का उठा के देख लीजिए, सेम स्टेटमेंट डाल दिया, right? So women, it should not only judiciary, there should be other institution also where women should be, not only women, other institution में तो थोड़ा रिजर्वेशन भी है। मान लीजिए पार्लियामेंट है तो SC/ST को लेकर के रिजर्वेशन है, वुमेन को लेकर के नहीं है, ट्रांसजेंडर को लेकर के नहीं है, जिन कम्युनिटी को लेकर के नहीं है, राइट? और जो था वो हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ nominating 2 Anglo-Indian. Tell me whether removing this clause is democratic or undemocratic. Democratic? Should you remove them? अभी तो हो गया ना? Now we have excluded 2 Anglo-Indian.
Is it democratic steps or undemocratic steps? कहावत ये है कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए था. The entire story will come here कि भाई रिजर्वेशन 10 साल के लिए, कितने साल ले जाओगे रिजर्वेशन? कल मैं एक स्टूडेंट का देख रहा था, he was taught by me. मुझे खुद अपने ऊपर शर्म आती है जब मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो मुझसे पढ़ा है. मैं that's my failure. I was unable to taught me even the basic ethics of the study. वो क्या शेयर किया हुआ था? इराक से हिंदू भाग गया, ईरान से हिंदू भाग गया, गांधार से हिंदू भाग गया, राइट, यहाँ से हिंदू भाग गया, कश्मीर से हिंदू भाग गया. कहाँ से भागोगे हिंदू? कितने दिन तक भागोगे? This threat of quality, this is called the paranoid politics. To whom you are threatening? Are you threatening or are you doing some kind of propaganda? Or are you part of that propaganda? You are not a soul. You are the just agent of that propaganda. कुछ नहीं होना है तुम्हारा, कुछ नहीं होगा. जो रूल कर रहा है वो रूल कर रहा है इस कंट्री में. तुम क्या हो? तुम एक टूल्स हो जो यूज हो रहे हो. I didn't teach you that thing. I taught something differently, but man appeared something differently. Right? As several times I teach you that my teaching and your socialization. Right? Sometimes your socialization influence you so much so that my teaching becomes totally, null and void. No, nothing. I failed to change even a single element of that portion. Right? तो आप रहे किसके साथ? जिसके साथ रहे. इवन मुल्ला की कम्युनिटी में लोग ऐसे हो जाते हैं. Why? Mullah community, Muslims are also orthodox. It's not true that they are very sane, no, but not all Muslim. But yes, when you are religious fundamentalist, your religion determines your all behavior. Your religion not only determines your behavior, but you also look to the world through the lens of religion. तुम्हारा दिमाग सड़ गया, कोई काम का नहीं है. तुम्हारा दिमाग अब पागल हो गया है. It's totally, पूरा दुनिया कैसे देख रहा है. Anyway, that was about my student. कल मैं, right, he was from UP. कहा कि कैसे बदलूंगा, पढ़ा के भी स्टूडेंट को कैसे बदल सकते हैं, right? अब if you are unable to change, bring some changes in your student, then your all teaching are futile, totally, baseless. पढ़ना ये नहीं होता कि आप एग्जाम पास कर लो. That is one mean that you can achieve, but even after that you become a good bureaucrat. Your approach should be humanistic, rather than your approach should be impartial. Right? You must have integrity. Right? You should not look Hindu, Muslim, this caste, that caste. Right? But if you are looking to the people as a कोई असम से आया तो यार मैं असम का हूँ तो क्या भालू सब बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है. You are bureaucrat and you are a state, and for all of you, everyone is your king. And you are servant. Actually, civil services बोलते हैं ना. You are servant of all people, right? And everyone's culture should be your culture. You shouldn't be partial. कोई शौक से आया था, अच्छा तुम है, तुम्हारे लिए, that happens. You go to the थाना, right? कोई अगर तमिलनाडु से है इंसान, उसका चोरी हो गया, उसको देखो पुलिस वाला कितने इंट्रोगेट करता है, right? और तुम भगवा लेके पहुंच जाओ, थोड़ा सा ऐसे बोलो कि देखो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है. अरे बहुत फर्क पड़ता है, right? How religion, caste, all feudal factors. अगर वुमेन चला जाए थाने में, देखो क्या कैसे वो करता है, नहीं, right?
This should not be the, but बहुत important part है कास्ट। इसका मतलब नहीं है कि कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी शुड टॉक अबाउट कास्ट, वी टॉक अबाउट पेट्रियार्की, वी शुड टॉक अबाउट ऑल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, राइट, इन ऑर्डर टू salivate ourselves, to minimize the conflict and maximize harmony। नहीं, रिलीजन पे इस तरह बात नहीं करे तुम्हारा धर्म बेकार मेरा धर्म अच्छा, तो अब मैं बात कैसी होती है रिलीजन पे, राइट। एनीवे तो कल से दिमाग मेरा, कल सुबह से दिमाग इतना खराब है कि मैंने क्या पढ़ा है इस में, राइट। एनीवे मुझसे ही नहीं पढ़ा, बहुत लोग होते हैं, have you heard of Rousseau? He said there are 3 set of institutions that influence individual's life. One is family. This is the first institution of your education, right? पहला इंस्टीट्यूशन है जो आपको सिखाता है। दूसरा टेम्पल, चर्च, जो भी है, टेम्पल, चर्च, वो भी आपको सिखाता है। तीसरा, राइट, तीसरा है स्कूल, यूनिवर्सिटी। मैं चौथा जोड़ देता हूँ, एक और मिनट। चौथा है आपका पीयर्स ग्रुप। ये आपको बहुत सिखाता है, पीयर्स ग्रुप। Your friends taught you many things. कहाँ से? नहीं, ये तो फैमिली में आपको बताते हैं बेटा अच्छे से रहना, किसी का माँ बाप नहीं कहता कि बेटा ऐसे मत रहना। और आप बाहर जाके किससे मिलते हो, फैमिली का कंट्रोल नहीं होता है ना। आप यहाँ से भी सीखते हो, यहाँ से भी सीखते हो। समटाइम्स आपका जो फैमिली का सराउंडिंग है, सर्कमस्टांसेस है, आप पीयर्स ग्रुप उसी हिसाब से बनाते हो, होता है ना, क्योंकि आपको एजुकेशन उसी हिसाब से मिला हुआ है। बट समटाइम्स क्या होता है, घर में कुछ बाहर कुछ, राइट। बियर पिया और उधर से कुछ खा लिया, फिर घर में निकले, घर को निकल लिया। हाँ मम्मी, अरे क्या बेटा, कुछ नहीं मम्मी, जाओ मैं सो रहा। No, human behavior are very dynamic. You cannot generalize. But these are the 4, institution of, तो एक कितना कर लेगा, ये स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ के तुम कितना जान लोगे। ये जो 3 है ना, बहुत हावी हो रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर। ये अदर 3 है, वो बहुत हावी हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और ये तुम्हें ना कुछ सिखा पाए ना तुम कुछ सीख पाए। नीलबट्टा सन्नाटा। फाइन, तो पूरा एजुकेशन का पर्पस है एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना। whatever wherever you are, fine. Anyway, जाने दो। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन था उस स्टूडेंट से, राइट। एनीवे, नहीं कुछ नहीं किया उसने, मेरा कुछ हार्म नहीं किया, बट जिस तरह से वो लीड कर रहा है, right, that is very dangerous. No, अरे एक्चुअली स्टूडेंट, हाँ वो कॉलेज का स्टूडेंट था। आई यूज्ड टू टीच इन यूनिवर्सिटी ना, तो कॉलेज का स्टूडेंट था। मैंने कहा क्या पढ़ा तुमने, और कोविड ने तो उसका 2 साल ऐसे खा गया। द एंटायर कोविड वी हैड ओनली टेक्नोलॉजी टू टीच यू, नथिंग एल्स, नो जीरो ह्यूमन इंटरेक्शन, राइट। एंड अगर आप सोसाइटी में नहीं जाते हो, इंटरेक्शन नहीं करते हो, जानोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा इंसान कैसे होते हैं, राइट। दूर से ही अंदाजा लगाओगे, अच्छा मुस्लिम ऐसे होते हैं, या तमिल लोग ऐसे होते हैं, या केरलाइट जो मल्लू होते हैं ऐसे होते हैं, बंगाली बहुत मछली खाते हैं, बहुत महंगा है। Your assumption would be based on prejudices. Fine, anyway, चलो। हाँ जी, क्या क्या 104 CA, हाँ हाँ हाँ, एंग्लो इंडियंस को हटा दिए गए थे। यस, गवर्नमेंट क्या बोल कर रहा है, बहुत दिन हो गया रिजर्वेशन का, उसको हटाइए और तो बात हो गया। यही पहले जो फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन वाज फॉर द 10 years,
for each category, for SC, ST, Anglo-Indian, right? अब उसको हर 10 साल बाद आप उसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं। बट ये तो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट का ही, पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट लाता है। हर एक्सटेंशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, हर 10 ईयर्स के लिए। इस बार 2020 में था, 2020 में टर्नओवर में कहा कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, नाउ वी शुड abolish this. Who are Anglo-Indians? Either mother or father has some European origin. बहुत है हमारे, बट इतना नहीं है कि 5 लाख नहीं है, ऐसा नहीं। कहीं पे 5 लाख है, 10 लाख है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं पे 5,000 के, 7,000 के, 8,000 के। मुंबई में सबसे ज़्यादा है, राइट? सबसे ज़्यादा सिटी में ज़्यादा है। मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली, राइट? मुंबई हैज बीन कैपिटल सिटी, इकोनॉमिक, अभी भी बोलते हैं, यू नो, दिल्ली इज अ सीट ऑफ पावर, बट मुंबई इज अ सीट ऑफ इकोनॉमी। सारा इकोनॉमी आप देखेंगे, सारा जो हेडक्वार्टर है, बहुत सारे अब तो बहुत इधर उधर जा रहे हैं। एनीवे, देखिए अपॉइंटमेंट हमने कल कराया था, किसका? अच्छा, उस अपॉइंटमेंट में कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना, मतलब इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, राइट, दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। So we have done appointment. Now, right, qualification. The appointment किया था हमने, and is it clear? First judge's case, second judge's case, third judge's case, और last में जो आया था ना, last में क्या हुआ था? The Parliament has passed 99th Constitutional Amendment Act, right? And the Supreme Court said it is a ultra virus. इसको fourth judge's case भी बोलते हैं। So you can just थोड़ा सा राइट लिख लो एक लाइन में, ये मैं कल नहीं लिख पाया। This is also called fourth judge's case. अच्छा, fourth judges ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, इसीलिए जजेस केस बोल रहे हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड फोर्थ जजेस केस। अब ये लिखिए, क्वालिफिकेशन लिखिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है? यस सुमंता, क्या क्या क्वालिफिकेशन है? बोलो बोलो। यू नो, आई नो, यू नो। अरे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ना, बोलो, लिखो। सिटीजन ऑफ इंडिया, या लिखो सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ शुभम, हाँ लिखिए। must have served as a judge of High Court for 5 years. Must have served as a judge of High Court for 5 years, or as a lawyer in the High Court or Supreme Court for 10 years. यही है शुभम? और लॉयर served as a 5 साल जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, या 10 साल लॉयर होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में। तो he must have served as a judge in the high court for 5 years, or as a lawyer for 10 years in high court or the supreme court. ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। अच्छा, एज बार क्या है भाई? 10 ईयर लिखिए, 10 ईयर। अच्छा, मिनिमम एज कितना है, कितना होना चाहिए? जैसे एमएलए एमपी में है ना, कितने साल के लोग जज बन सकते हैं? Constitution does not talk about minimum age. The Constitution does not prescribe minimum age for the appointment. So one minute, the Constitution does not provide the 10-year age में चला, 10 year of a judge. Right. He can or she can serve as a judge
till the age of 65 years. ऐसा नहीं कि 3 साल जज होगा, 5 साल जज होगा, 3 महीने जज होगा, नहीं. जब से अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद 65 ईयर तक वो जज रहेंगे. एज ऑफ 65 years. 65, yeah, age of 65 years. One can serve as a judge of the Supreme Court or high, at the age of. अच्छा, so High Court में कितना है ये? 62. कितना है शुभम? मोहर लगाइए. 62 है. हाई कोर्ट में 62 है. मोहर लगाइए. ठीक है, लिखिए. He she can resign by submitting resignation letter to किसको? अच्छा, जज किसको रेजिग्नेशन लेटर देगा? CJI को, प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट क्या है? He she can resign by submitting resignation letter to the president. दूसरा हो गया. तीसरा फैक्टर लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए. He she can removed by an order of the president. He she can be removed by an order of the president. Order of the president, and that order must be passed by the parliament within a session. ब्रैकेट में लिख दीजिए impeachment. Within a session. एक ही सेशन में होना चाहिए. He can be or she can be removed by an order of the president, and that order must be passed by the parliament within a session or within same session. अब ऐसा नहीं कि बजट सेशन में लोकसभा से पास हुआ, मानसून सेशन में राज्यसभा से पास हुआ, तो वो हो गए. एक ही सेशन में होना चाहिए पास. आपको पता है 3 सेशन होता है, मानसून सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन. इनका रिमूवल प्रोसेस जिस सेशन में शुरू होगा उसी सेशन में खत्म हो जाना चाहिए. लोकसभा से पास हो जाना चाहिए, राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल देंगे, चलिए भाई हटिए अभी से. समझ गए? विद इन सेम सेशन होना चाहिए. वेन ही गॉट द आइडिया? विद इन सेम सेशन द पार्लियामेंट मस्ट पास एन ऑर्डर टू रिमूव द जज, राइट, एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम बाय दैट ऑर्डर. अच्छा, रिमूवल क्या है? अब ये तो टेनियर होगा. रिमूवल लिखिए. अच्छा, कैसे रिमूवल होता है शुभम? अच्छा, लिखिए. The Constitution does not mention the process of removal of judges. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारा कोर्स तो अब खत्म हो जाएगा एक ही सप्ताह में, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकता हूँ मैं. हाँ, जुडिशरी के बाद कुछ नहीं है तो PRI पढ़ाऊँगा 2 दिन, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक दिन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ने का नहीं, मैं नोट्स दे दूँगा पढ़ेगा. हाँ, क्या लिखा? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड or mention the process of removal of judges. देखिए, second point, the Judges Inquiry Act 1968, the Judges Inquiry Act 1968 explains the process of removal of a judge. Judges Inquiry Act 1968 explain the process of removal of a judge. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है कि कैसे हटाना है उसको. ठीक है. अच्छा, ग्राउंड क्या है इनका हटाने का? किस ग्राउंड पे इनको हटा सकते हैं? देखो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी.
अच्छा लिखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। So can you on? Proved misbehavior or incapacity. 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 अगर वो capacity is not capable, then he should be removed. देखिए the process of removal. Process of removal. देखिए the motion for removal, the motion for removal of a judge must be signed by 100 MPs in the Lok Sabha. मोशन कहीं से शुरू हो सकता है ना, लोकसभा से, राज्यसभा से, तो 100 MP और 50 MPs in case of Rajya Sabha, और 50 MPs in the Rajya Sabha in order to introduce the impeachment process. अच्छा, समझ में आया पहला स्टेप क्या था, क्या है सुमंता? What is this steps all about? The motion will be passed for the removal of the judges. No. If motion is to introduce, Okay, then 100 Then- MPs in Lok Sabha should yeah. sign So it if and motion is to introduce, then it can be introduced in the Lok Sabha if only 100, 100 MPs will yeah, at least 100 MP sign the motion in Lok Sabha. in the Lok Sabha. Or 50 MPs in If it is introduced in the Rajya Sabha, then the 50 MP of the Rajya Sabha must sign that removal resolution or removal motion to introduce. That is process step. समझ में आया हिमांशी? ठीक है, दूसरा स्टेप है, देखिए the presiding officer should admit such motion. The presiding officer admit such motion. तो दूसरा क्राइटेरिया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको एडमिट करे, नहीं एडमिट करेगा खत्म, खारिज। Very clear? The presiding officer should admit such motion. Fine. Third, after admitting the resolution, right, comma, a committee is constituted by the presiding officer. अब अगर एक बार वो एडमिट हो गया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है? एक कमेटी बिठाएगी, ठीक है? The committee is constituted by the presiding officer. The committee shall constitute, or the committee will consist. The committee will consist. कौन होता है? एक लिखिए, एक CJI और सीनियर मोस्ट जज, अगर सीजीआई के अगेंस्ट में है तो सीनियर मोस्ट जज होगा, अगर जज के अंदर में है तो सीजीआई होगा। इतना ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि इसके बदले ये, ऐसे नहीं दिखाना। सीजीआई कौन होगा? सीजीआई ऑफ एससी, अगर सीजीआई के अगेंस्ट में है तो, मान लीजिए इम्पीचमेंट सीजीआई के अगेंस्ट में है तो क्या होगा? इफ, यहाँ थोड़ा भी लिखिए, इफ removal process is against the CGI, then the committee
will consist senior most. अब ये बन रहा है सीनियर मोस्ट जज। समझ गए? चाहे जज के अगेंस्ट में तो पहला होगा CGI, बी देखिए 1 CGI ऑफ SC, किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है। इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड C a jurist, कोई भी मतलब नॉलेजेबल। उपेंद्र बख्शी का नाम सुने हो? इज ए जूरिस्ट। एक तो CGI होंगे, 1 CGI ऑफ हाई कोर्ट, एक 1 जूरिस्ट और एक CGI ऑफ SC सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? जज ही जूरिस्ट नहीं होता। बहुत लोग हैं जो जज नहीं हैं बट दे आर हाईली knowledgeable about the law, domestic law and international law. There are very highly qualified person. सोली स्वराब जी का नाम सुना होगा आपने। He died ना सोली स्वराब जी। हाँ? लोग क्या? अच्छा वेणुगोपाल का नाम सुने हो कि उसका भी नहीं सुने हो? अभी अटॉर्नी जनरल है। अब स्टेट के लोगों का स्टेट का जॉब दोगे, स्टेट के लोगों को नहीं नाम नहीं सुनोगे तो फिर कैसे चलेगा? वेणुगोपाल, सोली स्वराब जी का आप लोगों ने नाम नहीं सुना है? कोई बात नहीं सुना है, कोई बात सुन लीजिए। सोली स्वराब जी वाज अटॉर्नी जनरल वन पॉइंट ऑफ टाइम। ही वाज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन। कल मैंने आपको राजू रामचंद्रन का नाम बताया, लिखवाया। ही इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन। मैंने प्रताप भानु का मेहता नाम बताया, राइट? जूरिस्ट मतलब जो हाईली क्वालिफाइड है। अच्छा ये कौन बनाएगा कमिटी? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप लिखिए। ये तो थर्ड था ना, फोर्थ स्टेप लिखिए। If the committee shall examine the case. The committee shall examine the case, and if it found that the judge is guilty of proved misbehavior, the committee shall examine the case, and if it found that judge is guilty of proved misbehavior or incapacity, it will submit its report to the house. Basically committee examine करेगी और एक report submit करेगी, right? And they will find whether the judge is really accused of proved misbehavior or incapacity, right? तो ये तो कमिटी सबमिट कर देगी रिपोर्ट। नाउ लिखिए the house will pass a resolution with a special majority. If the house will pass the resolution with a special majority, then it will send to the other house. ठीक है? The other house will again pass it with a special majority. Now other house will again pass it with the other special majority. Now the president will issue a removal order. देखो कितना डिफिकल्ट है जज को हटाना। Now the president will issue a removal order. मैंने क्या किया? शुरू लाइन में बताया था, the president can remove the judge with an order, and that order should be passed by the parliament. ये प्रोसेस है पूरा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Not a single judges has been removed so far in India. समझ में आया? प्रोसेस वेनी क्लियर या शुभम क्लियर है? क्या प्रोसेस है? पता चला ना? ठीक है, ये कमेटी के बारे में पता चला। अच्छा ये यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है।
CGI और इसके बारे में, राइट? बट आप लिखोगे तो केवल CGI लिख देना जब, ठीक है? ये नहीं, ये क्यों बताया मैंने? मान लो कि CGI के अगेंस्ट में है तो क्या होगा? तो सीनियर मोस्ट जज को यहाँ पर लाएंगे और CGI को बाहर रखेंगे इससे, कमेटी से, और ये सब रहेंगे, ठीक है? चलो, कौन? रिमूवल और इम्पीचमेंट, हाँ सेम ही है, सेम ही है, राइट? जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो होता है ये प्रोसेस को, उसको भी इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है रिमूवल को इम्पीचमेंट कहते हैं, वैसे ही कोर्ट जजेस के बारे में रिमूवल के इम्पीचमेंट कहते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं कहते, राइट? बस उनका प्रोसेस बहुत आसान है, बट ये प्रोसेस देखो ना कितना डिफिकल्ट है। गॉट द आइडिया? चलिए, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Power and functions of judiciary. पहला लिखिए, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, या 2 लाइन पहले लिखवा दो, उसके बाद लिखवा, हाँ? या 2 लाइन पहले लिखवा दो। The Constitution provides a vast range of power. The Constitution provides a vast range of power to the judiciary, which can be classified as follows. Which can be classified as follows. ठीक है? अब लिखिए पहला, देखिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड ओरिजिनल क्यों लगा है ये समझना है मुझे। जो पहले टास्क, या हमारे जुडिशरी को क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? जुडिशरी को क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट? तो जो ऑब्जेक्टिव था, एम्बिशन था, राइट, उसको ओरिजिनल बोलते हैं। अब क्या था ऑब्जेक्टिव जुडिशरी को क्रिएट करने का? आपने फेडरलिज्म पढ़ा है? पढ़ा है ना फेडरलिज्म? क्या था और जुडिशरी को क्रिएट करने का? कि भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। ये बताया ना फेडरलिज्म में, राइट? और इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा तो ये जो हम एक साथ रहने के लिए आए हैं फेडरल में, वो झगड़ा जो होगा तो सॉल्व कौन करेगा? नहीं, स्टेट और यूनियन जब एक साथ, they come together to stay in federation, who will resolve the dispute? It is judiciary. Right? But we are federal democracy, a federal democratic state. Who will protect the rights of the people? Judiciary. Who will interpret the constitution? Judiciary. Who will protect the constitution? Judiciary. These all are the original power. जुडिशरी का बहुत सारा काम है। एक जो काम है पर्पस जिसके लिए हमने उसको क्रिएट किया था, राइट? और 3-4 चीजें क्रिएट किया था। एक तो पहला काम है कि जो झगड़ा हो जाए उसको निपटाना है और लोगों के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करें, राइट? और भी है वो, चलिए देखिए आर्टिकल 131 provides the power to Supreme Court Article 131 provides power to the Supreme Court to resolve dispute between union and state or among state government.
Article 131 provides power to the Supreme Court to resolve dispute between union government and state government or among state governments. It can hear only legal matters. It can hear only legal matters. अच्छा, पॉलिटिकल मैटर कौन देखेगा भाई? लिख लो पहले, फिर बताना मुझे. It can hear only legal matters. अच्छा, लीगल मैटर्स कौन देखेगा? पॉलिटिकल मैटर्स कौन देखेगा? इंटरेस्टेड काउंसिल, जोनल काउंसिल. गॉट द आइडिया? ठीक है ना? There are tribunals, like interstate border tribunal जो है, interstate water dispute tribunal है. जैसे बोलो. Exactly why? Because there are a special that is called Article 136. अभी लिखवाता हूँ. But आपको समझाना है. समझ में आया कि ये पॉलिटिकल मैटर को नहीं देखेगा, राइट? केवल लीगल मैटर को देगा. अब यही लीगल जो झगड़ा है स्टेट और यूनियन और स्टेट के बीच में, उसको सॉल्व करेगा, या अमंग स्टेट उसको सॉल्व करेगा. देखिए, हाउएवर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, however article 136 of the constitution empowers the Supreme Court to hear HEAR to hear a special leave petition. A special leave petition, LEAVE. स्पेशल का पता ही आपको, petition आता ही होगा. Can hear a special leave petition filed against any court or tribunals. अच्छा, पता चला अब फाइनल के क्यों आता है. ये आर्टिकल है और सारा काम जुडिशरी के पास चला जाता है. इसके अलावा मैंने जब आपको बता रहा था, when I was explaining interstate water dispute tribunal and their all politics, मैंने और एक चीज बताया था. आर्टिकल, ये तो एक आर्टिकल है which empowers the Supreme Court to hear any decision taken up by any judiciary or tribunal. One more article. Do you remember? Article 21. Judiciary is a protector of the Constitution, and Constitution provides a right to life. And what is essential of right to life? पानी. तो पानी का मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, मुझे पानी नहीं मिल रहा है. चलिए, ये ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया. अब दूसरा लिखिए, पैरा चेंज कर लीजिए. लिखिए रिच जुडिक्शन, पैरा चेंज कर दीजिए. ओरिजिनल जुडिक्शन में ही रिच जुडिक्शन आता है. लिखिए रिच जुडिक्शन ऑल्सो कम अंडर. लक्ष्मण क्या क्या सबको अलग अलग कर दिया है. हाँ, ऐसा नहीं है. ओरिजिनल पावर है जुडिक्शन उसका. सुप्रीम कोर्ट, हाँ, शुभम विल रिवाइज. हाँ, the rich jurisdiction also come under the original power of the Supreme Court. The Supreme Court is guardian of citizens' liberty and rights, while state, and you know the definition of a state, while state tends to curb individuals' liberty
individual's liberty, comma, the Supreme Court has a duty, and it is the prime duty of the Supreme Court to protect the individual's liberty. The Supreme Court has duty to protect rights and liberty of citizen. Am I able to connect with the fundamental right? हाँ? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसके लिए ये भी बनाया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, गार्जियन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या करेगा ये? राइट? नेक्स्ट पैरा चेंज कर देना एंड राइट लिखना एक दो लाइन और लिखिएगा. द सुप्रीम कोर्ट इज also final interpreter. The Supreme Court is also final interpreter and the Supreme Court is also final interpreter and protector of Indian Constitution. Protector of Indian Constitution. ये प्राइमरी काम है सुप्रीम कोर्ट का. उसके बाद बहुत काम है, राइट? हर चीज में लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं. कुछ नहीं हुआ कोर्ट में पहुंच गए. ये हमारा एक काम हो गया, राइट? एंड आई कॉल इट रिच जुरिडिक्शन under original jurisdiction. Right? Now, second power is called like appellate jurisdiction. APPELLATE. Appellate jurisdiction. APPE. Appellate jurisdiction. Double L. Appellate jurisdiction. Okay, the Supreme Court can hear. The Supreme Court can hear appeals against the High Court. The Supreme Court can hear appeals against the High Court. अब High Court क्या देता है? Death sentence. Supreme Court क्या उसको छोड़ देता है? करता है कि नहीं करता है? Have you heard about Shibu Soren? Shibu Soren? The Hemant Soren? Have you heard about Hemant Soren? He is the Chief Minister of Jharkhand. नहीं सुना. चीफ मिनिस्टर तो सुनना पड़ेगा ना, इतना तो समझ, इतना तो उसके पिताजी थे शिबू सोरेन, राइट? और शिबू सोरेन को क्या मिला? शिबू सोरेन को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या दिया? डेथ सेंटेंस. हाई कोर्ट ने क्या दिया? डेथ सेंटेंस. सुप्रीम कोर्ट में आके क्या हो गया? ही रिस्पेक्टफुली एक्यूटेड. उसने मारा था, ये वो तो गुंडा. तो पॉलिटिक्स में तो कौन कौन संत है बताओ ना. several times I said you saint or sinner. जो ज्यादा संत है ना, वो ज्यादा सीन करता है. I know about the what panda does in कहाँ पर तुम्हारा जो कौन सा धाम है वो? उड़ीसा में कौन सा वो है? पुरी में क्या पंडा करता है? I know. Yes. Right? दिन में कुछ और, रात में कुछ और. Ask him. Yeah, there are many Oriental people. दिन में कुछ और, रात में कुछ और. Right? तो जो ज्यादा सेंट बनता है, वो ज्यादा नोटोरियस है. हाँ? सुप्रीम कोर्ट का अलग जजमेंट रहा होगा. Anyway, but Supreme Court has acquitted them. I'm not questioning on Supreme Court judgment, but I'm telling you that the Supreme Court can, terminate the judgment of the High Court. ऐसा होता है तो of course cases का burden बढ़ता ही रहेगा ना. Of course बढ़ता रहेगा. वहाँ पर क्या है? क्या नाम है इसका जो हाई कोर्ट ये इसका क्या नाम है उसका? अभी लास्ट में सब न्यूज़पेपर वगैरह सब में ऐसे केसेस सर्विस और अच्छे सीरी आते हैं. तो इतना सब क्यों क्या हुआ? बंद करना है. हाँ. लास्ट का न्यूज़पेपर लोगे सबका एचसी का जो भी जजमेंट है सब वो कैंसिल करके दूसरा देंगे. तो ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स बर्डन तो ज्यादा बढ़ेगा. अरे बताओ लोग, बर्डन बढ़ने का काम जो है ना, आदमी नहीं करती, मतलब जनता नहीं करती, ज़्यादा सरकार करती है. द लार्जेस्ट पेटिशन फाइल
by the government itself. देखो किसी और का ज़्यादा होने से किसी और का कम होता है। Exactly. तो वो गलती है ना। क्यों ऐसा? Or if you look at the Supreme Court of US, it's totally different. हाँ। Right. And that thing I think that's more justified. कि सुप्रीम कोर्ट को भी इंडिपेंडेंट कर दो, लेयर बना दो, और वही मामला फेडरल कोर्ट देखे जो अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का देखो ना, बताऊंगा नीति आयोग क्या रिकमेंडेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, केस इतना है, जजेज नहीं है, पार्लियामेंट का सब काम तो कर दो। हाँ, बजट नहीं है, तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं होना चाहिए। मैं 2 साल पहले एक सवाल लिखा था, not only about India, the entire Asian society is not suitable for democracy. जल्दी से जल्दी फ्रीडम मिल गया तो Why? Because कल किसने बोला कि मुझे डर लगता है? हाँ, जो सोसाइटी में वो डर कैसे आएगा जब तक आप लड़ेंगे नहीं? ये डर यूरोपियन सोसाइटी में कैसे गया? The entire parliamentarian fought with the monarchy. There was a huge civil war, right? And the parliamentarians or the people established their own authority over the monarchy. The monarchy was limited by the people, right? They doesn't fear to the monarchy, or even what about the government? The society is highly developed. People are very conscious about their rights, right? They are called participant citizens, right? हमारे यहाँ पे the citizen feels powerlessness. हमारे यहाँ पर क्या है? Citizen feels powerlessness. पूरे बस में एक इंसान जाके धमका देता है और सब चुप रहते हैं। क्यों? Because we don't to involve in police case. अगर पुलिस इंस्टीट्यूशन अच्छा है तो इंसान जाएगा इन्वॉल्व होने के लिए, बिकॉज पुलिस विल बिहेव इन फ्रेंडली मैनर, बट ऐसा होता नहीं है। आप पुलिस के चक्कर में आ गए, आप पैसा निकालिए, कोई भी कारण हो, आपने झगड़ा शुरू किया है या झगड़ा में घुसे, यू आर पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट ना, पैसा निकालिए। डज इट हैपन और नॉट? तो हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा है नहीं। मुझे बैक ऑफ मत, अदरवाइज मैं कहीं और लेके चला, सारी बहुत सारी कामें होती है, राइट? क्या लिखा? हाँ, इट मीन्स, लिखिए, इट मीन्स, पानी पी के लिखा, सुप्रीम कोर्ट इज अ अपेक्स बॉडी इन इंडिया। युवराज कहाँ तक लिखे थे? सर 3 सेकंड्स आगे। हाँ, लेकिन इट मीन्स अभी शुरू ही किया। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी इन इंडिया। ये हमारा हो गया एपेलेट जुरिडिक्शन। थर्ड लिखिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कभी भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में सवाल आता है तो हमेशा आप जुरिडिक्शन को, ये जो तीनों एंगल लिखाए हुए मैंने 3 कंपोनेंट, उसको जरूर लिखिए, राइट? लिखिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन। लिखिए द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज टू द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है? नेक्स्ट लिखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। नहीं, ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया। नेक्स्ट लिखिए ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फंक्शन, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फंक्शंस एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है? Done. Now write judicial review. अब दूसरा आपका, अच्छा ये क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? ये पार्लियामेंट और जुडिशियल के बीच का झगड़ा है। क्या ये सब है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है?
क्या कहाँ पर है जुडिशियल रिव्यू? कौन सा आर्टिकल कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू? तो भैया बता। आई थिंक ये इसमें है हाँ? आर्टिकल 30 तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का हो आर्टिकल 32 तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का हो। See, judicial review is not explained explicitly by the Constitution, or the Constitution does not explicitly mention the power of judicial review. But there are several articles which empowers the Parliament to review the action of legislature and executive. Right? कौन सा आर्टिकल है बताओ? एक तो 32 बोला, ठीक है, या कोई भी राइट्स का वायलेशन होगा तो आएगा। दूसरा फिर ये तो एग्जीक्यूटिव को लगाम लगाने के लिए। और आर्टिकल 13(2) याद है? आर्टिकल 13(2) क्या है शिवम? The state shall not make any law, right, that is contravention or inconsistent with the part 3 of the Indian Constitution, right? So the Supreme Court derives its power from various articles, right? पहले लिखिए इसका क्या मतलब है जुडिशियल रिव्यू का। देखिए, it refers, हाँ जी, पावर्स नहीं आएगा ना सर, डेफिनेशन नहीं आएगा। पावर्स में नहीं ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पावर हो गया, पावर फंक्शंस खत्म जुडिशियल उसका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? एक्चुअली ये भी तुम सही बोल रहे हो, ये भी फंक्शंस ही है जुडिशियल रिव्यू करना, बट ये अलग से पड़ता है, राइट? क्योंकि हम अलग अलग फेज आपको पढ़ाएंगे जुडिशियल रिव्यू का, राइट? लिखिए, इट रेफर्स टू पावर ऑफ जुडिशरी, it refers to power of judiciary to check the validity of law, passed by the Parliament or the validity of action or direction of the executive. If the court finds the law or action against the spirit of the Constitution, if law or action is against the spirit of the Constitution, then the Supreme Court declares the law or action as unconstitutional. अच्छा, क्या समझ में आया इतना? इसका क्या मतलब है? एक तो बताया कि मैंने आपको लॉ, और दूसरा बताया एक्शन और डायरेक्शन. So law either passed by the Parliament or State Assembly, right? हाई कोर्ट में बन जाता है ये पार्लियामेंट, राइट? और एक्शन और डायरेक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इसको चेक करता है, राइट? कैसे चेक करता है? किस लेंस से चेक करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के लेंस से. द सुप्रीम कोर्ट चेक दिस और दिस विद द लेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और उसको कुछ संदिग्ध लगता है, if it does not find this action or the law as per the constitution or the spirit of the constitution, then it said
this action is wrong action, or this law is invalid. And this power of the Supreme Court is called judicial review. Making sense? Yeah, Veni? Right? हिमांशी, सरबजीत, समझ में आया? ठीक है? किस लेंस से देखता है? कौन से चश्मे से देखता है? संविधान के चश्मे से, राइट? और संविधान के चश्मे से इसको अगर गलत लगता है तो कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पुलिस ने आर्बिट्रेटली अरेस्ट कर लिया, राइट? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या हाई कोर्ट के पास जाएगा, सेम पावर हाई कोर्ट पर दिया, सॉरी हाई कोर्ट भी। मान लीजिए कि कोई लॉ पार्लियामेंट ने पास किया, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, राइट? और हाई कोर्ट ने क्या दिया कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका सेम इफेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो इसका मतलब नहीं हाई कोर्ट ने कह दिया तो कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं है। इवन अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट कैन चेक बाय द tested by the High Court, right? And it will have same validity, but it can be appealed to the Supreme Court. But Supreme Court के against में कहाँ पर अपील जाता है? कहीं पर नहीं जाता, रिव्यू पिटीशन होता है, अपील के लिए जाता है। समझ में आया? Got the idea? क्या है judicial review? Now tell me, what is judicial review? Power of judiciary to check the executive And legislature, right? सर, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस में कुछ जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने। और वो जजमेंट उसका पता he didn't like the judgment, someone. Who? The victim, someone. Okay, you don't, yeah. For example, For take the your think, court case na, हाँ. Yeah, I have committed a murder. I had a case, and Supreme Court said that I did it, but in reality I didn't do it. What to do then? You have to face the consequence, punishment. No other chances. Review petition डाल सकते हैं. See, review petition डाल सकते हैं. But once the Supreme Court has given judgment, then you cannot challenge it. You can go for pardoning president के लिए, because there is error, na? Why pardoning power? Because yeah, it can rectify the error done by the judiciary. But every time that will not. No, not every time. And there is no system of compensation. Right? I don't know whether I was teaching you rights, then I told you that, right, if some person was arrested as a terrorist, he spent a maximum time, right? And later on it found that that person is not in court. Who will pay them? Right? Will judiciary will pay? Or state will pay? No one can pay the real, timeline. Right? But compensation, do we have that compensation thing? We don't have such formal compensation method. But sometimes what happens? Supreme Court कहता है इतना पैसा दे दो, इतना कर दो, इतना कर दो, कभी कभार. Then what is the justice they did in that case, sir? Justice is always contested. What is justice? What is justice? It's a philosophical question. Right? What is just? I thought you justice. It's the right thing to do. But even what is the right thing to do? It may be right for you, not for me. Exactly. Something may be right for me that may appear very ugly to you. The 300 families don't know what is right for them. So we can't contest anything against 300 family that judges. Okay. subjective of it. That's again subjective. ठीक है? चलो. You got the idea? Judicial review को पता चला? कुछ नहीं है. देखिए first phase of judicial review और phases of judicial review. Phases of judicial review or judicial review since independence you can write. देखिए first phase.
First phase was from 1951 to 1967. to 1967. 67 में क्या हुआ? गवर्नमेंट चेंज नहीं, मतलब हर टाइम लाइक 90 बताया हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर बताया हूँ। 1967 में उस गोलकनाथ कैसा है, उसने क्या दिया कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है। इसी अदर अभी जगह में देखिए इन दिस पेज, देखिए इन दिस पेज ये मैंने आपको बताया है जब मैंने जुडिशियल ये करा रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर। इन दिस पेज द रिलेशंस बिटवीन द पार्लियामेंट and judiciary were harmonical. Right? In this page, the government imposed restrictions on freedom of speech and expression, restrictions on speech and expression. It also did first constitutional amendment. Right? The Supreme Court in the Ramesh Thapar versus State of Madras, Supreme Court in the Ramesh Thapar versus State of Madras case held that the government cannot impose restrictions on freedom of speech and expression. अच्छा, हुआ क्या पता है? एक मैगजीन था, वो चेन्नई से निकलता था। मैगजीन होता है ना, मैगजीन का नाम था क्रॉसरोड्स, उतना नहीं लिखना है। उसमें कुछ ऐसा लिखा गया था, राइट? रमेश थापर वाज एडिटर, उसने ऐसा कुछ लिखा और दैट वाज चैलेंज इन द कोर्ट, राइट? हाँ, स्टेट ने इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शंस, उसने चैलेंज किया कि भाई आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यू कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट? इसके बाद थोड़ा सा एक लाइन मैंने लिखवा दिया ना, आपको पढ़ना जरा, फिर से पढ़ना। In this case, the relations between the parliament and the judiciary are harmonical. In this case, the government imposed restriction on the freedom of speech and expression, and it also did first constitutional. ये हटा, it did also first constitutional amendment act. ये केस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, राइट? अब लिखिए, रमेश थापर में क्या कहा कोर्ट ने कि you cannot impose restrictions. Now लिखिए, the government responded with first amendment act. पहले लिखवा गया, the government responded with first constitutional amendment act. ठीक है? अच्छा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या हुआ था? हाँ, सरकार ने क्या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिया। क्या क्या हुआ? इट इंट्रोड्यूस्ड, मैंने एक बार और पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया है? कौन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं पढ़ाया? बात तो किया है मैंने, अलग अलग टुकड़ों में बात किया। देखिए, इट इंट्रोड्यूस्ड 9th शेड्यूल, it inserted Article 31B,
which says that any law kept in the 9th schedule is beyond the reach of judiciary. जुडिशरी को हटा दिया, जो भी लॉ 9 शेड्यूल में आप रखेंगे आप उसको जुडिशरी आप टच नहीं करिएगा, ठीक है। थर्ड लिखिए, इट अमेंडेड आर्टिकल 15, मैंने बताया है बहुत बार जब मैं फंडामेंटल राइट बता रहा था, कभी क्वेश्चन नहीं दिया इसके ऊपर, अच्छा लिख लेना बहुत जरूरी है। Article 15 and inserted Article 15(4) clause, Article 15 clause 4 रिजर्वेशन वाला मामला, हाँ देखिए। It also amended Article 19. It amended also Article 19 and inserted reasonable restrictions right on freedom of speech and expression, freedom of speech and expression, ठीक है। the first yes अभी जो भी सीए आ रहा है उसमें एक सेट ऑफ चेंजेस आ रहा है, तो जुडिशियल के वो रिव्यू में जाके उसको चैलेंज करेगा तो पूरा सीए निकलेगा कि सिर्फ वो क्लॉज निकलेगा, क्लॉज निकलेगा। सीए फॉर लाइक इवॉल्विंग द पर्टिकुलर क्लॉज, जैसे मान लो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट था और उसको क्या किया हमने 5th शेड्यूल में भी लगा दिया। अब कोर्ट ने कहा कि ये जो 5th शेड्यूल में आप लगा रहे हैं ये अल्ट्रा वायरस है, तो ये पूरा 73rd अमेंडमेंट पूरा अल्ट्रा वायरस नहीं हो गया, बट उस पर्टिकुलर पार्ट में इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसीलिए उसके बाद एक नया एक्ट आया जिसको बोलते हैं पेसा, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। तो पूरा ठीक है, समझ गए। ये चेंजेस आए, लिखिए द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चेंज द पैरा राइट। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट was challenged in the court. The First Amendment Act challenged in the court. The Supreme Court in Sankari Prasad case, Sankari, in 1951 के बाद case, in Sankari Prasad case, held that the Parliament has power to amend the Constitution, including fundamental rights. ठीक है। अब इसको ना जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया आपको उससे भी थोड़ा टैली करके पढ़िएगा, राइट। क्यों बोला? क्योंकि जो अमेंडमेंट है, द वर्ड अमेंडमेंट इज नॉट द लॉ दैट मेंशन इन द आर्टिकल 13 क्लॉज 2, वो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे लिखने की जरूरत होता है। फाइन, नाउ the Supreme Court continue the same line. The Supreme Court repeated similar judgment in Sajjan Singh case. The Supreme Court repeated similar judgment in Sajjan Singh case. ठीक है, but
it reversed its earlier judgment in Golaknath case. It reversed its judgment in Golaknath case. ब्रैकेट में लिखेगा 1967, इसीलिए 1950 से लेके 51 से 1967 इंदिरा गांधी से। और ये भी है, इंदिरा गांधी कमजोर पड़ी। कल मैं बता रहा था आपको 67 नहीं भाई, शंकरी प्रसाद कब आ रहा है, या तो गोलकनाथ कब आ रहा है, 1967 में, 1967 में आ रहा है ना। इंदिरा गांधी बन गई चुकी थी। कल मैंने आपको बताया कि जब भी पार्लियामेंट कमजोर होता है सुप्रीम कोर्ट असर्टिव हो जाता है, और जब भी पार्लियामेंट का ये पार्लियामेंट स्ट्रांग होता है सुप्रीम कोर्ट वीक पड़ जाता है। समझ रहे हो? तो इन्होंने कहा इसमें गोलकनाथ में क्या कहा कि यू कैन नॉट चेंज द अमेंडमेंट, यू कैन नॉट डू अमेंडमेंट, राइट, यू कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट्स। ऐसा जजमेंट देंगे पूरा रिवर्स हो गया, तो पूरा रिवर्स हो गया। चेंज हो सकता है फास्ट This is basically conflict between judiciary and parliament. राइट्स में कि किसके पास ज्यादा पावर है, मैं हूँ सही या आप सही हो। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते थे और ये उसको इनवैलिड कर देते। लेकिन ये तो कोर्ट का मतलब एक जजमेंट पूरा रिवर्स ही कर देगा ना, रिवर्स कर देगा। कल मैंने बताया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसने पूरा खत्म कर दिया, गोबर बना दिया उसका। बोला कि तुम्हारा बिल्कुल बेकार है, अल्ट्रा वायरस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैम्पर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, नाउ सेकंड पेज। सेकंड पेज कब तक आता है, कब से कब तक है? 1967 to 1973, 73 आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केस ऑन भारती केस, वो भी लिखवाऊंगा।